टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ કેપિટલ અને હું છું કુશાગ્ર. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે આદેશ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જેમાં અમેરિકાએ H-1B વિઝા માટે હવે $1 લાખ એટલે કે લગભગ 88 લાખ રૂપિયા ફી વસૂલવાનો નિર્ણય લીધો છે. હા, એવું કહેવાય છે કે માત્ર શ્રેષ્ઠ ટોપ ક્લાસ અને લાયકાત ધરાવતા વિદેશી કર્મચારીઓ માટે જ હવે અમેરિકાની ડોર ખુલશે. એટલે કે આ નિર્ણયનો સીધો અસર થાય છે ભારતના લાખો IT પ્રોફેશનલ્સ પર, જેઓ પોતાનું સપનું અમેરિકાની જમીન પર પગ મૂકવાનું જોઈ રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આ નવા વિઝા રિવોલ્યુશન પાછળ કોઈ મકસદ છે અને અમેરિકાના નોકરીઓ માત્ર અમેરિકન માટે છે તેવો આ મકસદ. અને આજે આ જ મુદ્દે આપણે ચર્ચા કરીશું અને જાણીશું કે શું આ નિર્ણય મેરિટ બેઝડ ઇમિગ્રેશન તરફ એક યોગ્ય પગલું છે કે આ માત્ર ટ્રમ્પના ચૂંટણીઓ પૂર્વેનું કોઈ રાજકારણ છે. આ મુદ્દે આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છે, જેમાં આપણી સાથે વિદેશી બાબતોના જાણકાર પૂર્ણિમા નાથ, કે જેઓ અમેરિકાથી આપણી સાથે સીધા જોડાવાના છે, અને સાથે યુએસમાં રહેતા અને વરિષ્ઠ પત્રકાર એવા નીરવ ગોવાણી આપણી સાથે જોડાયા છે. આ બંનેનું સ્વાગત છે. સૌથી પહેલાં તો નીરવભાઈ, આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે આ અત્યારની જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને જે ફીમાં વધારો થયો છે, આટલો તોતિંગ વધારો, તેની પાછળનું કારણ કયું જવાબદાર માની શકાય? કુશાગ્રભાઈ જે રીતે નિર્ણય કર્યો કે $1 લાખ હવેથી જે વિઝા એપ્લિકેશન ફી, માત્ર H-1B વિઝા માટેની વાત હતી, અને H-1B વિઝાની એપ્લિકેશન ફીમાં જે વધારો કર્યો છે, સૌથી મહત્વની બાબત સાથે સાથે એ જ વખતે તેમને એવું પણ સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે અમેરિકામાં જે અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને અમેરિકાની યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરીને બહાર નીકળતા વિદ્યાર્થીઓને સરળતાથી જે નોકરી મળી રહે. અને સીધી વસ્તુ છે કુશાગ્રભાઈ, એક કંપનીમાં 100 જોબ છે, 100 જોબમાંથી જો 65 જોબ બહારથી આવેલા લોકોને આપી દે તો 35 જોબ વધે છે. એટલે અમેરિકામાંથી જે પાસ થઈને બહાર નીકળતા જે વિદ્યાર્થીઓ છે, તેમાંથી 35 જ વિદ્યાર્થીઓને જોબ મળતી હતી. આ જે મુદ્દો હતો તે છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલ્યો આવતો હતો. સૌથી મહત્વની બાબત, ગયા વર્ષે 71% જે H-1B વિઝાના 71% વિઝા માત્ર ભારતીયોએ લીધા હતા. એટલે બહુ મોટો જે આંકડો છે તે ભારતીયોને H-1B વિઝા ઉપર મળી જતો હતો. હવે અહીંની જે યુનિવર્સિટીઓમાંથી જે પાસ આઉટ વિદ્યાર્થીઓ હતા, તેઓને સ્પષ્ટપણે ક્યાંક ને ક્યાંક નોકરીઓ અગર તો ઓછા પગારની જોબ મળતી હતી, જેને જે મુદ્દાને ધ્યાનમાં લઈને અમેરિકાએ રાષ્ટ્રપતિએ પોતાના દેશના વિદ્યાર્થીઓને સીધી રીતે જોબ મળે તે માટેનો આ એક રસ્તો અપનાવ્યો છે. સાથે સાથે સ્પષ્ટ એવું પણ કહ્યું છે કે જે ટેલેન્ટેડ વ્યક્તિઓ છે, તે ટેલેન્ટેડ વ્યક્તિઓની તો અમેરિકાને જરૂરત જ છે. એટલે જે ટેલેન્ટેડ વ્યક્તિઓ છે તેઓને લાવવા માટે જે કંપનીઓ છે તેઓએ $1 લાખ પે કરવા પડશે દર વર્ષે. એટલે જે ટેલેન્ટેડ વ્યક્તિઓ છે તે તો આવી જ શકે છે, અને જેની જરૂર છે તે કંપનીઓ તેના માટે પે કરી શકે છે. આ એક સીધો મુદ્દો અત્યારે લાગી રહ્યો છે. જી કુશાગ્ર. બિલકુલ. અને પૂર્ણિમાજી, આપને પણ એ જ પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે એક રિફોર્મ ઇમિગ્રેશનનું કરવામાં આવી રહ્યું છે, કે પછી જે રીતે અત્યારે સ્કિલ ટેક ઓવરના વિરુદ્ધની અંદર આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, આપના મતે શું લાગે છે, આ કયા પ્રકારનો નિર્ણય ગણી શકાય? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई अप्रिशिएट इट. वैसे मुझे गुजराती नहीं आती, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है. तो आपकी सर ने जो पहले बोल रहे थे मुझे पूरा समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपको 2-3 आंकड़े बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं. जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो अटैक डॉग्स हैं इंडिया के ऊपर और इंडियंस के ऊपर ऐसे अत्याचार टाइप कर रहे हैं, उनको लगता है कि कुछ भी करने से इंडिया समहाउ बेंड हो जाएंगे, उनके बारे में सुनने लग जाएंगे एंड एक्सेट्रा लाइक दैट. तो मुझे लगता है कि उनको खुद के जो लीनिएज है, उनका जो खुद का जो एंसेस्टर्स है, वो कैसे यूएस आया वो टोटली भूल गए. तो मैं 2-3 चीज़ बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोनाल्ड ट्रंप के जो ग्रैंडफादर है फ्रेडरिक ट्रंप, वो जो 1885 में आया था, वो किस वीसा में आया था? या तब वहाँ पे इमिग्रेशन एक्ट तो हुआ करता था, लेकिन वीसा का कोई ये नहीं था. तो वो अनस्किल्ड इमिग्रेशन के हिसाब से
यूएस एंटर किए। काम कौन सा कर रहे थे? ही वॉज ए माइनर एंड बार्बर अप्रेंटिस। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप की मदर की बात करूं, मैरी मैकलियोड, उन्होंने 1930 को यूएस एंटर किया न्यूयॉर्क में। कहाँ से आए? स्कॉटलैंड से आए। और उनका क्या पेशा क्या था? हाउसमेड, हाउस सर्वेंट। मुझे आप बताइए, वो $1 बिलियन लेके आए थे क्या? तो अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी इंसल्ट कर रहे हैं कि $1 मिलियन से गोल्ड कार्ड बेच रहे हैं, $5 मिलियन से आप प्लैटिनम कार्ड बेच रहे हो, इमिग्रेंट्स के बेसिकली लिटरली पकड़ के चेन से पकड़ के आप बोल रहे हो कि जो लीगल इमिग्रेंट्स है उसको भी बोल रहे हो कि वॉलंटरी वापस चले जाए। हुंडई जो रेड हुआ था उसको यहाँ यहीं पे हुआ था। उनकी जो करंट पत्नी है वो भी तो स्लोवेनियन इमिग्रेंट है। वो अमेरिका कैसे आई थी? टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा में आई थी। वो कहते कि वो काम किया था उसमें टूरिस्ट वीज़ा में भी, तो ये फ्रॉड नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, उन्होंने H1B कैसे अप्लाई कर दिया? कौन सी हाई स्किल लेके आ गए थे वो? और ऊपर से उनको इन ए वे मिराकुलसली उन्होंने एक बिजनेसमैन के साथ कनेक्टेड हुआ डोनाल्ड ट्रंप, समहाउ उनका जीनियस वीज़ा मिल गया EB1 का। मुझे एक बात बताइए, वो कौन सा जीनियस स्लोवेनिया से लेके आ गई थी कि यहाँ पे उनको EB1 में ग्रीन कार्ड मिल गया? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो अटैक है ये सिर्फ इन जनरल इमिग्रेंट्स के ऊपर नहीं हो रहा है, इंडियंस के ऊपर टारगेट इसलिए करा जा रहा है। इंडिया बेसिकली वो उनको लगता है कि रशिया को लंच में खाएंगे और ब्रेकफास्ट में इंडिया को खाएंगे और उसके बाद जाके चाइना को जाके डिनर में खाएंगे पूरा गैला करके। तो उनको लगता है कि कुछ भी करने से इंडियंस उनको वो डर जाएंगे और अमेरिका की बात सुनने लगेंगे। जब पहलगाम हुआ था तब भी तो बात नहीं सुने थे इंडिया। वो कितनी बार तो बोल रहे थे। अभी यस्टरडे का आंकड़ा आप देखो तो वो कहाँ से 5 वार, 6 वार, 7 वार करते करते कल 11 वार तक पहुँच गए। कौन से 11 वार उन्होंने स्टॉप करवाया? गाजा का स्टॉप करवाया कि रशिया यूक्रेन का करवाया? तो ये जो एजेंडा चल रहा है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प की, ये दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। आई एम ए सपोर्टर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, आई एम ए वोटर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, आई एम नॉट 1 टाइम वोटर, नॉट 2 टाइम वोटर्स। मैं 3 बार वोट किया उनके लिए। और ऐसी भी बात नहीं है कि सिर्फ वोट किया है, मैंने उनके लिए कैंपेन किया है। मेरा एजेंडा ये था हिंदूज एंड ट्रम्प। आप हैशटैग हिंदूज एंड ट्रम्प देख लो। और आई एग्जिट किया था इसी के हिसाब से, क्योंकि लेफ्ट को जो वायलेंस मैं देख रही थी कि मुझे लग रहा था लोग वो जो कह रहे थे वो सही था। वो मागा जो बेस था, मागा बेस का क्या एजेंडा था? सिक्योर्ड बॉर्डर था, लॉ एंड ऑर्डर था, और इलीगल इमिग्रेंट्स जो था उनके पीछे जाने के लिए। इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू तो इंडिया में भी है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। लेकिन आप जब वो गोल्ड पोस्ट चेंज करते करते आप लीगल इमिग्रेंट्स के बोल रहे हो सारे सर फ्रॉड है, दिस इज ए डेंजरस नैरेटिव। अब ये इंडियन को ले ले आप, 1.1% है हम लोग यहाँ पे, इस सिर्फ 1% लोग आपको इतना डरा दिया। दिस इज द सेम थिंग दैट हैज हैपेंड टू उगांडाज इंडियंस, जो गुजराती और पंजाबीज उगांडा में थे 1972 में। हुआ क्या? उनको उधर से निकाल दिया गया। 90 डेज डिक्री आया था और उनको $120 लेके जाने का अनुमति दिया था और प्लस 220 kg ले जा सकते थे। और वहां से 5660 बिजनेसेस हड़प लिया था, उनके लैंड, प्रॉपर्टीज, गोल्ड सब ले लिया था उगांडन गवर्नमेंट। क्या हुआ था उसके बाद? सारा इंडियन को निकाल दे के उनका इन्फ्लेशन 200% चला गया था, इकोनॉमी कोलैप्स्ड। एंड उसके बाद नया डिक्टेटर आने के बाद उनको इंडियंस को वापस बुलाया। पहले 1% इंडियंस हुआ करता था वहां पे, अब 0.06% इंडियंस है। इसका मतलब है लेस देन 1%। फिर भी उनके जो सप्लाई चेन और बिजनेस है उनके इंडियंस की कब्जा 75% है, पहले 90% हुआ करता था। अब मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ जूस की। यूरोप में जूस का क्या पॉपुलेशन था जब उनको हटाया गया था, उनको एक्सटर्मिनेट करा गया था? 1%। अब ये एग्जैजुरेशन नहीं होगा मैं बोलने से कि इंडियंस को यहाँ पे पकड़ पकड़ के जिंदा जलाया जाएगा। और अब मैं आज से ये बात नहीं बोल रही हूँ, पहले से बोल रही हूँ कि हिंदूज जो है, इंडियंस जो है, इंडियन अमेरिकन हिंदूज जो है, उनको ये यहाँ पे नहीं चाहिए, दे आर नॉट वेलकम ओवर हियर। एक बड़ा एक्टिविस्ट हुआ करता था रिसेंटली जिनको शॉट किया गया है, उन्होंने ये भी बात बोला था 90% अमेरिका विल बी स्टिल अमेरिका इफ 90% इज इंडियन। एक कैवियट है उसमें, सिर्फ
वो क्रिश्चियन होना चाहिए। तो हिंदूज अगर आप हो तो आपको यहाँ पे आपका जगह नहीं है। आपको बड़ा बड़ा नाम कह के बुलाते हैं। आप शिट ईटर्स हो, आप काउ यूरिन ड्रिंकर्स हो, काउ वर्शिपर हो, आप फिल्थी हो, डर्टी हो, स्मेली हो, आप स्कैमर्स हो, कॉल सेंटर स्कैमर्स हो, आप फ्रॉड्स हो, यहाँ पे H1B चुरा के लेके जाते हो, अमेरिकन बिजनेस चुराते हो। ये एक नैरेटिव सेट करा गया है इंडियंस के ऊपर। आप कितनी भी अच्छे हो फर्क नहीं पड़ता। आप बॉम्ब तो नहीं लगा रहे हो कोई बिल्डिंग पे, आप हाईजेक तो नहीं कर रहे हो एरोप्लेन को, आप तो किसी का बिहेडिंग नहीं कर रहे हो, आप किसी को टेरराइज नहीं कर रहे हो। डजंट मैटर सर, इट इज अगेंस्ट हिंदूज, इट इज अगेंस्ट हिंदू इंडियन अमेरिकन। अब ये चाहते कि वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म का एक वो एजेंडा पहले से चला रहे। और आप डोनाल्ड ट्रंप का एंसेस्टर का क्या क्वालिफिकेशन था? वाइट अमेरिकन। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, ये भी जानना है कि आगे वहाँ पे जितने भी भारतीय समुदाय के लोग हैं उनमें क्या क्या अभी सोच है, पहले कितनी आशा अपेक्षा थी, वो सब जानेंगे। पर નીરવ ભાઈ, એક બીજો સવાલ એ પણ થઈ રહ્યો છે કે આ નિર્ણય જો કે લેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ત્યાંના લોકોની શું લાગણી હતી, જ્યાં સ્થાનિક અમેરિકન્સ છે તેમની લાગણી શું છે? કારણ કે આપ ત્યાં છો અને તેમની લાગણી એવી છે કે શું વિદેશી જેટલા લોકો આવી રહ્યા છે વર્કર્સ, તેઓ તેમની નોકરી છીનવી રહ્યા છે, તેવી કોઈ લાગણી છે કે પછી માત્ર ને માત્ર એક રાજકારણ, ગ્લોબલ લેવલનું રાજકારણ આમાં જોવા મળે? જી કૃતાર્થભાઈ, બહુ સાચી વાત એ છે કે તમે જે કીધું એમાં જ આપના પ્રશ્નમાં જ જવાબ હતો। લાગણીની વાત જે છે કે અમેરિકન્સની લાગણી શું છે, અમેરિકન્સની લાગણી સીધી રીતે વાત કરીએ ને કૃતાર્થભાઈ, તો કોઈ પણ જગ્યાએ બીજી કોઈ કંટ્રીના, અગર તો બીજા કોઈ ધર્મના, અગર તો બીજા કોઈ લોકો ઉપર જોવા ના મળે। પહેલો મુદ્દો એમની સીધી સિમ્પલ એક જ લાગણી છે કે દરેક જગ્યાએ માત્ર ને માત્ર એમના વ્યક્તિઓ હોવા જોઈએ, કોઈ પણ વ્યક્તિઓ ઉપર એમના જ હોવા જોઈએ। એમની નીચે મજૂરી તરીકે એક કહેવાય ને કે આપણે ત્યાં જે મજૂરિયા આવે છે એવા મજૂરિયા તરીકે એમના નીચે બીજા કોઈ રહે, એમાં એમને વાંધો નથી। જે રીતે ધીરે ધીરે અમેરિકાની મોટી મોટી ટેક કંપનીઓમાં ભારતીયોનો દબદબો વધતો ગયો, તેને લઈને આ પ્રશ્ન તો ક્યારનો ઉદ્ભવ્યો જ હતો। સાથે સાથે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જે રીતે H1B વિઝાના મુદ્દાને લઈને, કારણ કે જ્યારે તે કેમ્પેનિંગમાં હતા ને ત્યારે પણ તેમને આવા પ્રકારના મુદ્દાઓને ધ્યાન પર લીધા હતા અને અમેરિકન પબ્લિકની સામે મૂક્યા હતા। કારણ એ હતું કે જે સમયે ખાલી ઇલીગલ મુદ્દાની વાત નહોતી, ઇલીગલ ઇમિગ્રન્ટ જે છે એ મુદ્દો તો હતો, સાથે સાથે જે ટેકનિકલી જે વ્યક્તિઓ હતા, જે ઉપરના, કારણ કે સામે તમે જુઓ કૃતાર્થભાઈ, જે ટેસ્લા જેવી કંપનીઓ છે તો એ H1B વિઝાના ફેવરમાં હતી। આ ઉપરાંત ઘણી બધી તમામ મોટી કંપનીઓ, જે ટેકનિકલ કંપનીઓ છે તે એવું વિચારતી હતી કે H1B વિઝા પર જ, એટલે કે બહારથી આવેલા ઇમિગ્રન્ટ વર્કરો ઉપર જ તેમની કંપનીઓ કામ કરે। કારણ સીધું એ હતું કે એક તો વળતર ઓછું આપવામાં આવે અને જે ટેલેન્ટ છે તે જે છે તે તેનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે। પણ સામે જ્યારે અમેરિકન છે તે એવું વિચારે છે કે ભાઈ પોતાની વ્યક્તિ દોડ્યો છે તે કોઈક જગ્યાએ બેઠો હોવો જોઈએ, તેની નીચે ભલે 5 ઇન્ડિયન કામ કરતા હોવા જોઈએ, તેનાથી તેમને કોઈ પણ બાદ નથી। એટલે આવા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક મુદ્દાઓ આવતા હતા। લોકોની લાગણી તો પહેલેથી જ આ રીતની રહી છે। જે રીતે આ દેશ આઝાદ થયો અમેરિકા, ત્યારે પણ એવું જ હતું। એ અમેરિકા પર જ્યારે બ્રિટને રાજ કર્યું ને ત્યારે સાઉથ આફ્રિકાથી બ્લેક પીપલને લાવ્યા હતા। કારણ એ હતું કે તેમને તેમના પોતાના ત્યાં મજૂરી માટે લાવ્યા હતા। હવે બંને પછી અંદર એવું કીધું કે આ અમારો દેશ છે, અમારો દેશ છે, ને એ ત્યાંથી જ જે સ્કીન એટલે ટૂંકમાં જે રંગભેદની નીતિ છે તે ચાલુ થઈ ગઈ અને અત્યારે હજી પણ ચાલે છે। તેમાં બ્રાઉનીઝ પણ હવે તો આવી ગયા અને આ બધી જે છે એ દુનિયા આખી જાણે છે કે પછી તો કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે। આજે પણ તેમની જે માનસિકતા છે ને તે એ જ છે જે આઝાદી, અમેરિકા આઝાદ થયું તે વખતે હતી ને તે જ। अच्छा, એટલે હજુ પણ એ લોકો એ જ કહી રહ્યા છે કે હજી જે आज़ादी જોઈએ તે નથી મળી રહી। बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये बात एक सोचने जैसी भी है। आप बात कर रहे थे अपन भारतीय समुदाय की, वहाँ पे भारतीय समुदाय का कितना हिस्सा जो ट्रम्प के साथ था, जैसे राष्ट्रपति ट्रम्प ने जब कैंपेन शुरू किया था इलेक्शन के लिए, प्रचार के लिए, कौन सी बातें रखी जो भारतीय समुदाय को वो आकर्षित करे और उनके साथ जुड़ा था। और साथ साथ अभी एक कुछ दिनों पहले जब तमाम जितनी बड़ी कंपनी है, जितनी भी नामी कंपनियां हैं, उनके सीईओ के साथ भी उन्होंने एक खूब बहुत अच्छी एक बैठक चली थी, लंबी, बहुत कुछ उन्होंने बताया था उस बैठक में। पर ये बैठक के बाद ये अचानक से ये निर्णय लेना कितना वाजिब माना जाएगा?
सर, बैठक की जो बात हो रही थी उसमें आपने सत्या नाडेला का भी उपस्थित थे। वो कौन थे? वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। मैं आपको बताऊं, सत्या नाडेला आया है साउथ इंडिया से, और पढ़ा कहाँ पे? मैं मिलवाकी में रहती हूँ, विस्कॉन्सिन के छोटे से शहर, लेकिन इट्स एक्चुअली द इकोनॉमिक हब ओवर हियर। मिलवाकी की जो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिलवाकी, यहाँ से वो मास्टर्स डिग्री करके गए थे, यहाँ से वो। लेकिन आप मुझे यहाँ पे बताओ, जो शख्स इंडिया से आके यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा में आके पढ़ के गए, जाके एक बड़े पोजीशन में है, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता अपने कम्युनिटी के लिए बात करें? वो के कन्वर्टेड क्रिश्चियन बन चुका है वो। अब उस मीटिंग में सत्या नाडेला बोले क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कर रहे सब अच्छा कर रहे, और डर रहे क्या? सुंदर पिचाई कहाँ गए? वेयर इज अजय बांगा? वेयर इज आवर सीईओज? जब हम लोग जो ऐसे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो ऐसे बड़े बड़े दिखावा करते हैं, हर प्रोग्राम में जाके सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर लेते हैं, और सेलिब्रिटी के सिवा कोई प्रोग्राम रन भी नहीं करता। सिर्फ ठुमका लगाना होता है इंडियन अमेरिकन को, पूछना नहीं होता कुछ चीज़ हमें। और कोई पॉलिटिशियन आते हैं तो उनके साथ सिर्फ पिक्चर लेके पोस्ट करना है, उनको कुछ पूछते नहीं। आप तो पूछ रहे थे, हमें पूछना चाहिए। हमारे कम्युनिटी का मुझे बताइए क्या पूछे? हमारा सुरक्षा पूछे, हमारे लोगों के लिए कुछ भी पूछे। यहाँ पे हमारे लोग जो यहाँ पे H1B में आते, लोग घर में फैमिली सब कुछ छोड़ के आते, यहाँ पे मिडिल ऑफ द ईयर प्लान करके आते, बच्चों को लेके आते, ना उनका डे केयर का कुछ समझ आती है, ना इनका समाज के बारे में कुछ समझ में आती है। यहाँ पे नया एक लाइफ शुरू करती है, उनका टैक्सेस तो दे जाते रहते, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ग्रीन कार्ड मिलेगा कि नहीं। या ऐसे तो मिलियंस ऑफ इंडियंस पड़े हुए हैं, उनका कोई पता ही नहीं है उनको मिलेगा कि नहीं। अभी तो बिल्कुल समझ आ गया कि उनको यहाँ से निकल दिया जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस सिचुएशन में स्लेव के जैसा इस कंट्री में आने का क्या मतलब बना? डोनाल्ड ट्रंप की जो एंसेस्टर थे वो स्लेव जैसे आए थे क्या? ना 1865 में तो स्लेवरी एबोलिश किया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 1885 में उनके ग्रेट ग्रैंडफादर आए थे, वो स्लेव जैसा आए थे क्या? तो हमें स्लेव जैसा क्यों ट्रीट करा जा रहा है? हमारे जो बड़े बड़े मिलियनियर बिलियनियर सीईओज बैठे हुए हैं और डॉक्टर्स है, वो उनके प्रोग्राम्स होती है, सेलिब्रिटीज आती है, पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, उनको क्या पूछते हैं? मैं तो आपको पूछती हूँ, मैं तो अपने पार्टी से बोल के मैं थक गई हूँ। वो इंडियंस की बात नहीं सुन रहे, वो इंडियंस को अमेरिकन नहीं समझते। यही बात मैं बोलती हूँ कि अमेरिकन जो कम्युनिटी है, इंक्लूडिंग इंडियन एम्बेसी in America, they should pick this situation up, but they don't. I have to ask you, please tell me exactly what is Indian embassy doing in America? Did they take any issues? Do we know what is going on? मैं रोज फॉलो करती हूँ इंडियन एम्बेसी, यूएस एम्बेसी इंडिया में क्या लिख रहे हैं। रोज लिखते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे वीसा ओवरस्टे मत करना, निकाल दिया जाएगा। स्टूडेंट वीसा ओवरस्टे मत करना, निकाल दिया जाएगा। द वे दे आर यूजिंग द लैंग्वेजेस आर वेरी इंसल्टिंग। मैं तो वहाँ पे जाके लिख रही हूँ कि यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। डू नॉट कम टू अमेरिका, दिस इज नॉट सेफ फॉर इंडियंस, दिस इज नॉट सेफ फॉर हिंदू अमेरिकन ऑल्सो। हम तो यूएस सिटीजन है, हमें यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा सर, हमें यहाँ से निकल दिया जाएगा। हमें बार बार क्वेश्चन करा जाता है, आई यू इंडिया, आई यू फाइटिंग फॉर इंडिया, आई यू फाइटिंग फॉर अमेरिका। अब मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के जो एंसेस्टर्स आए थे वो क्या पॉलिटिकल साइंस लेके आए थे यहाँ पे? बिल्कुल। तो हम अमेरिकन नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है सर, इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें पकड़ के जलाया जाएगा, हमें मारा जाएगा, शूट करा जाएगा, हमें मार के बोला जाएगा कि हम सुसाइड किया है। हम सुसाइडल नहीं है सर। बिल्कुल। दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन एंड आई एम टेलिंग एवरीबॉडी टू नॉट कम टू कुशागर भाई बिल्कुल પૂર્ણિમાબેન એમની જે લાગણી છે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, બહુ સાચી બાબત છે। બે દિવસ પહેલાની વાત છે કુશાગર ભાઈ। જાણીએ છે કે આપને પણ નીરવભાઈ આમને જે પૂર્ણિમાબેને વાત કરી છે તે આવો ભય શું તમામ લોકોમાં ત્યાં આગળ છે અત્યારે? ના, ચોક્કસથી કુશાગ્રભાઈ, પૂર્ણિમાબેન જે વાત કરી રહ્યા છે તે બહુ સાચી વાત છે। સૌથી મહત્વની બાબત, અમેરિકામાં રહેતા જે સો કોલ્ડ કોમ્યુનિટી લીડર્સ કહીએ આપણે, સો કોલ્ડ, કારણ એટલા માટે આ શબ્દ વાપરીએ છીએ કે અહીંયા ગુજરાતી કમ્યુનિટી, હું ગુજરાતી છું, ગુજરાતી કમ્યુનિટીના નેતાઓની વાત કરું ને તો તેઓ સો કોલ્ડ નેતાઓ
ભારતથી નેતાઓને બોલાવી અને અહીંયા વડાપ્રધાનની બર્થડે પાર્ટીનું સેલિબ્રેશન કરે છે. 2 દિવસ પહેલા જ કર્યું. સેલિબ્રેશન કરવાથી કોઈ વાંધો નથી, પણ એના પછી બીજા દિવસે જ્યારે એક ગુજરાતી બહેનનું મૃત્યુ થયું, અહીંયાના કોઈ વ્યક્તિએ લૂંટના ઈરાદે તેમની પર ફાયરિંગ કરીને તેમની હત્યા કરી છે, ત્યારે તમે 2 શબ્દ બી નહીં બોલે. કારણ એ છે કે તે અહીંયાના લોકોથી એટલા બધા અંદર છે. આ સો કોલ્ડ નેતાઓ માત્ર પોતાનો દેખાડો, જે પૂર્ણિમાબેને વાત કરીને તે એકદમ સત્ય વાત કરી છે, માત્ર ને માત્ર પોતાનો દેખાડો કરવામાં જ આ નેતાઓને રસ છે. બાકી અહીંની જે વ્યક્તિઓ, જે લોકો અહીંયા રહે છે, જે ભારતીયો, જે ગુજરાતીઓ રહે છે, તેમના માટે એક પણ વખત પોતાનો અવાજ ઊંચો કરી અને સરકારમાં કહેવા માટેની ફરજ જે છે તેમની, તે નથી નિભાવી શકતા. કારણ શું હોય તે હું એમાં નથી પડવા માંગતો, પરંતુ જે કરવું જોઈતું હતું તે હજી સુધી સો કોલ્ડ कम्युनिटी लीडर्स क्यारे नहीं કર્યું. बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा जी, जैसे नीरव भाई ने भी बताया कि ये जो सो कॉल्ड जो लीडर्स होते हैं अपने, जैसे कि अभी बात करेंगे भारतीय समुदाय के इतने बड़े बड़े लोग हैं जो वहाँ पे गवर्नेंस में बैठे हुए, गवर्नमेंट में बैठे हुए, वहाँ की संसद में दिखेंगे आपको, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनलिटी कंपनी में भी वहाँ पर आपको एक अच्छे ओहदे पे मिलते हैं. पर क्या वो उनको कोई फ़र्क पड़ता है भारतीय समुदाय का वहाँ पे क्या हाल होता है? उनके लिए कभी वो स्टैंड लिया है? नहीं सर, मैं आपको बहुत सच बोलूँगी, कड़वा बोलूँगी, और सच कड़वा ही होता है. और सुन लीजिए मेरी बात, ये जो लोग हैं ना, ये ब्राउन सिपोय से कम नहीं है. यहाँ पे बैठ के बार बार बोलते हैं कि हमें इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है. कोई बात नहीं है, आपको इंडिया से लेना देना नहीं है, लेकिन आपको इंडियन कम्युनिटी से कुछ लेना देना होना चाहिए ना. कोई आकर हमें बोले कि आप जीसस की बुक पढ़ो, बाइबल पढ़ो, मैं क्यों पढ़ूँ मुझे बताइए? मेरा गुरु जो है वो कम हो गया जीसस से? हाँ, मेरा हम लोग वो सब कॉपी करके नहीं बताया कि रिजरेक्शन है और वो उनका आइकन है कि नहीं, या कि काउंसिल ऑफ नीस में उनको टाइटल ऑफ क्राइस्ट दिया गया है तो उन्हीं को ही फॉलो करना पड़ेगा. भाई हम क्या इंफीरियर हो गए बिकॉज वी केम ओवर हियर? और उनके लोग भी तो यहाँ पे इमिग्रेंट होके आए थे ना. तो हम अगर 20 साल पहले आए, या हमारा कोई लोग 30 साल पहले आए, 40 साल पहले, हम लोग इंफीरियर इमिग्रेंट हो गए? तो आप इमिग्रेंट और इमिग्रेंट में अभी डिवीजन करोगे? जैसे पहले रेसिज्म हुआ करता था यहाँ पे, दिस कंट्री वाज बेस्ड, द फाउंडेशन इज रेस. तो मैं कहती हूँ रेस कहीं नहीं जाने वाला है, बट एट द सेम टाइम रिलीजन भी ऐड हो गया ऑन टॉप ऑफ इट. अब रेस का सिचुएशन कैसा है कि जैसे मैंने पहले कहा था आपको, यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा है कि ये जो कंट्री में 90% इंडियन होने से भी ये अमेरिकन हो सकता था, लेकिन एक शर्त है, वो जो सब क्रिश्चियन होना चाहिए. लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे वो स्किन कलर में भी डिवीजन करेंगे बाद में, लेकिन इनिशियली उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन करना बहुत ज़रूरी है. ये जो मागा मूवमेंट है ना, पहले हमें समझ नहीं आया था. मैं साइंस तो देख रही थी, उसके बारे में बात भी कर रही थी. आई कम्युनिकेटेड कि ये फैशिज्म की तरफ ना जाए, और जो मैंने देखा है, बट जो मैं फियर कर रही थी, जो डर लग रहा था, एग्जैक्टली वही हो रहा है. एंड इतना तेज गति से हो रहा है कि इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंडियन अमेरिकन को इस बात को थोड़ा सा समझना चाहिए. दिस एग्जैक्ट थिंग इज हैपनिंग इन आयरलैंड ऑल्सो. आप सुन रहे होंगे, वहाँ पे इंडियन के ऊपर अटैक हो रहा है. अब ऑस्ट्रेलिया में होगा, यूके में होगा, न्यूजीलैंड में होगा, नॉर्वे में होगा, पेरिस में होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में होगा. आप बैठे रहोगे, तब क्या करोगे? क्या होगा तब? हमें तो मारा ही जा रहा है ना. एक तो रिपोर्ट आया था किसी से कि अर्लियर दिस ईयर 90 डेज में 27 इंडियन को किल किया यहाँ पे. स्टूडेंट्स वेर फाउंड एज डेड स्टूडेंट्स. ना इंडियन इमिग्रेशन वो काम मुद्दा उठा रहा था, ना इंडियन अमेरिकन को कोई फ़र्क पड़ रहा था, ना इन हिंदूज को कोई फ़र्क पड़ रहा था. मैं बोल के थक गई हूँ कि हमारा कम्युनिटी को हुआ क्या है. आप इंडिया को, कोई तो कह नहीं रहा है कि आप इंडिया की केयर करो, लेकिन हमारी कम्युनिटी को तो केयर करें ना. जूस यहाँ पे बैठ के वो लोग इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, उसको तो कोई नहीं कह रहा है कि वो डबल स्टैंडर्ड है, उनका डुअल लॉयल्टी है. क्रिश्चियन जो यहाँ पे स्पेशली इन दिस कंट्री, अभी रिसेंट एजेंडा आया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से सर, कि क्रिश्चियन कहीं पे भी हो दुनिया में, उनके ऊपर अत्याचार हुआ तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम करेगी. ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन उससे सीख नहीं सकते?
बिल्कुल। कि हम भी तो यहाँ पे हैं, हम हिंदूज हैं। हमारा कौन सा और कंट्री है जहाँ पे आप कामाख्या मंदिर में जा सकते हो, उज्जैन में जा सकते हो, या बगलामुखी के माता के टेम्पल में जा सकते हो? मुझे बताइए जरा, कौन सा लैंड है जहाँ पे होली हिंदू लैंड है? क्रिश्चियन तो सब जगह में अपना जीसस स्टैचू लगा देते हैं, और हमारा जो हनुमान स्टैचू कहीं पे लगाया था, वहां पे जाके लोग वहां पे जाके हिंदूज के ऊपर बोलने लग गए, ये डीमोन गॉड है, निकाल दो, प्रोटेस्ट करने लग गए। तो हमारा कि यहाँ पे अधिकार नहीं है रहने के लिए? अगर यही चीज है, इंडियन गवर्नमेंट इससे बात क्यों नहीं कर रहा? और ह्यूमन राइट्स इशू यहाँ पे उठाते क्यों नहीं है? सेंसिटिव है और संवेदनशील है, इस पे जरूर से आगे इस पे सोचना भी चाहिएगा નીરવભાઈ। પરંતુ આપણે મુદ્દા પર પાછા આવીએ અને પાછું એ પણ એક ટૂંકમાં આપની પ્રતિક્રિયા એ પણ લેવા માંગીશ, કારણ કે જો આવા જે ફી વધારો હોય કે પછી આવા જે નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે આના દ્વારા, તો આની પર જે ટેલેન્ટ છે, વિદેશી ટેલેન્ટ, તેના માટે દરવાજા અમેરિકા બંધ કરી રહ્યું છે, તો શું તેનાથી જે ટેક જેટલી પણ ટેકની ટર્નઓવર કહીએ કે પછી ટેકની ઇકોનોમી કહીએ, ટેકની ઇકોનોમી પર ત્યાં આગળ શું કોઈ અસર થશે કે સ્ટાર્ટઅપ્સ પર કોઈ અસર થશે? 100% અસર પડશે કુશાગ્રભાઈ। જે રીતે કારણ એ હતું કે H1B વિઝા પર જે ટેલેન્ટ હતું બહારના દેશોમાં, તેને અમેરિકામાં લાવવા માટેનો સૌથી પહેલા જ્યારે આ ઇમિગ્રેશનમાં નિયમ બનાવ્યો ને, ત્યારે આ જ એક મુદ્દો હતો કે બહારના દેશમાં જે ટેલેન્ટ છે ને, તેને અમેરિકામાં લાવવામાં આવે અને તેનો ઉપયોગ કરી અને અમેરિકાની આર્થિક સદ્ધરતામાં વધારો કરવામાં આવે। તો જે રીતે ભારતીયોને સૌથી વધારે એમાં મોકો મળ્યો, કારણ એ હતું કે ટેકનિકલ રીતે ભારતીયો પહેલેથી આગળ જ હતા। ભલે ચીન આપણાથી આગળ છે, પરંતુ ચીનમાંથી કોઈ પણ કારણસર એટલા લોકો H1B પર હજી આવતા નથી। જે મેં ટકાવારી પણ તમને કહી, લાસ્ટ યર 71% ભારતીયો હતા કે જે H1B વિઝામાં હતા। હવે આ મુદ્દો જ્યારે અત્યારે $1 લાખ એપ્લિકેશન ફીમાં કરી દેવામાં આવ્યો છે હવે, અને સાથે સાથે તમામ કંપનીઓએ એવું પણ કહી દીધું છે કે 24 કલાકની અંદર જે વ્યક્તિઓ જે H1B વિઝા પર છે તેમને અમેરિકામાં પરત આવી જવાનું રહેશે। નહીં આવે તો પછી તેમને HR સાથે કોઈ પણ જાતની જે ગતિવિધિઓ, જે કાર્યવાહી કરવાની હોય તે કરીને અમેરિકા આવવાનું રહેશે, અને તેમને આવે તો કદાચ વિઝા રિવોક પણ થઈ શકે છે। આ તમામ જે ઘટનાઓ છે જાણીએ છીએ। આનાથી સૌથી મહત્વનો મુદ્દો અમેરિકામાં હાલ તરત જ પહેલા એ પડશે કે જે અમેરિકામાં જે ટેલેન્ટ, જે ટેકનિકલ કંપનીઓ છે ને, તેમાં જે બહારના વિદેશથી આવેલું જે ટેલેન્ટ છે ને, તે પહેલા તો ઓછું થઈ જશે, બરાબર છે। સાથે સાથે જે અમેરિકન કંપનીઓ છે તેમને જે પે સ્કેલ છે, જે ઇન્ડિયન જે ભારતીય ત્યાંથી આઈટી કરીને H1B વિઝા પર આવે છે ને જે પગાર લે છે, તેનાથી અમેરિકાથી પાસ આઉટ થયેલો જે વિદ્યાર્થી છે ને તે પગાર વધારે લેવાનો છે, એટલે જે પે સ્કેલ છે તેનો પણ પ્રોબ્લેમ થશે। સાથે સાથે જો બહારથી લાવશે તો એને $1 લાખ જેવી દર વર્ષે ધરખમ ફી ભરવાની રહેશે। એટલે આ તમામ મુદ્દાઓને જોતા આર્થિક રીતે જે ટેકનિકલ કંપનીઓ છે ને તેને ક્યાંક ને ક્યાંક બહુ મોટી અસર પડશે। સાથે સાથે જે નવી કંપનીઓ જે હવે સ્ટાર્ટઅપ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે કંપનીઓની અંદર, અને એની પર પણ બિલકુલ આવી શકે છે। આપની વાત બિલકુલ વ્યાજબી છે, અને નીરવભાઈ અને પુણ્યભાઈ આ ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો હાલ બુલેટિનમાં અત્યારે રોકાઈશું એક નાનકડા વિરામ માટે, પરંતુ આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ। નમસ્કાર।